Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel. That is hashtag Vinay's Vision, and I'm your personal auxiliary, Vinay Panekar. Tuning up right back again. I'm here for the very last time with the important questions. And for this particular season, I have been giving you all the importance, and I wish कि whatever you have written out of my importance, that should come up with a flying color in your paper and the result. And with that, we are coming on to a very end. Next video of mine will be a season finale. And with that, we are going to just wind up our relationship, which we had together for all this day during the board exam preparation. All right, when online studies was just a fashion, at that time onwards I have started making the video, and from there you can find out lots of geographic material which I couldn't make it right now at this moment because time is really less for me to help you out. So instead of that, I'll just ask you to just go onto my geography playlist, and please watch out all the video if you have doubt in graph, map, or any other questions. Am I clear? Right now we are going to move ahead with how to do your paper presentation. ध्यान रखना आपको ये पेपर प्रेजेंटेशन करने के टाइम पे आपको गलती नहीं करनी है. एंड बिकॉज अगर आपका आज हिस्ट्री का पेपर हार्ड गया है तो आई एम देयर विथ यू. फील माई वार्म हग्स, and here it's my time to give you a bustum on your fist. I'm also ready to give you a chest bump. Just make sure that you're giving your best for this last night, for tomorrow, the whole day, and the tomorrow ka night, and the next morning, the next to next day morning, whatever it is. Make sure that you're giving the best of your shots, because I don't want you to just go lethargic, exhausted at any point of time. When this is the last paper, do not show it that it is the last. Think that it is the first and give your best shot. Alright? It is not the last. It is the first paper of your board exam. Think it like that. Okay? Do not let your wires go wrangled at this moment. It is very important time wherein you have to boost your marks. And history का अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया है, इस पर प्लीज़ फोकस करिए. ध्यान रखना है आपको MCQs लिखने के टाइम पे क्वेश्चन नंबर लिखना है, अल्फ़ाबेट डालना है. आंसर जो है आपको क्वेश्चन के साथ लिखना है, फिल इन द ब्लैंक्स में. ओके, डो नॉट राइट 1-A whatever alphabet it is. Do not write it like that. Don't write question of one sentence. Directly write down the answer. अगर one sentence आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन आता है तो उसको डिस्टिंग्विश बिटवीन आप लिख सकते हो. अच्छे से लिखना, दो पॉइंट से लिखना, 2 पॉइंट से ज़्यादा मत लिखना. ऑल राइट. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर मार्क फ्रॉम द क्वेश्चन या मार्किंग इन द मैप. ये सारे क्वेश्चन आते हैं तो आपको ध्यान से हर एक को अच्छे से प्रैक्टिस करना है. हर एक का मेरा वीडियो चैनल पे है, प्लीज़ एक बार देख लेना. अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स द जोग्राफिकल रीजन एंड ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व द ऑप्शन प्लीज़ सॉल्व करके आना. अगर आपको एग्जाम में टाइम मिला है, जैसे आज हिस्ट्री में बहुत मिला होगा, तो आपको पेपर को रीचेक करना है. बाद में ऑप्शंस के लिए आपको जगह छोड़ना है और ऑप्शंस को फिल आउट करना है. एम आई क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर आउट ऑफ द क्वेश्चन इन द ग्राफ क्वेश्चन, ग्राफ के क्वेश्चन को ग्राफ के पेपर में ही अटेम्प्ट करना है. आपको उसको ये वाले पेपर में आके अटेम्प्ट नहीं करना है. ग्राफ बना है, बाजू में जगह है, वहाँ पे ग्राफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए. ऑल राइट. और ग्राफ के साथ में आपको ध्यान रखना है, एक और एक क्वेश्चन आता है जो है ग्राफ रीडिंग. ग्राफ रीडिंग का जो आंसर है वो आपको इस पेपर में लिखना है, इस वाले में. ओके, सप्लीमेंट शीट पे लिखना है. देन वी हैव मेन शीट पे, आई एम सॉरी. यहाँ पर ब्रीफ जब आएगा, आपको ब्रीफ में आपको ध्यान रखने का क्या, ब्रीफ को अच्छे से लिख रहे हो. मैप आएगा तो मैप के अंदर आप क्या कर रहे हो, नंबर 3 नंबर 2 डाल रहे हो. अगर किसी ने पूछा आपको कोल्ड डेजर्ट क्या है, तो ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये टोटली रॉन्ग आंसर है. कोल्ड डेजर्ट, आपको कोल्ड डेजर्ट नहीं लिखना है, आपको वहाँ पे लद्दाख लिखना है. लद्दाख लिखना ज़रूरी है. टीचर पागल रहेगी, आपका मार्क्स कट कर देगी. ऑलराइट. स्टूडेंट पागल रहेगा, उसको मार्क्स नहीं मिलेगा. आई एम सो सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक. सिक्किम यहाँ पर आपको आया तो आपको इस तरीके से करना है. नेक्स्ट, नर्मदा रिवर, मुंबई अगर पोर्ट आता है तो. ऑल राइट. एंड तमिलनाडु, केरला. एम आई क्लियर? आपको इसको अच्छे तरीके से करना है मार्क. एंड मेक श्योर करना कि जब आप ग्राफ बना रहे हो तो आप ग्राफ की रीडिंग्स बराबर लिख रहे हो वाई एक्सिस पे, ग्राफ की रीडिंग एक्स एक्सिस पे बराबर लिख रहे हो. यहाँ पे स्केल बना रहे हो विदाउट फेल, अदरवाइज यू आर गोइंग टू लूज योर मार्क्स. आई एम टेलिंग इट टू यू इन एडवांस. एक परसेंटेज के सारे क्वेश्चन है, 4 मार्क के क्वेश्चन है. मेक श्योर करना एक में भी गलती मत करके आओ. 16% आपको लेके आना है. एम आई क्लियर? 5 48%, सॉरी
16% सोशल साइंस को मिला के होता है, 8% आपको लेके आना है। एम आई क्लियर? अभी चलते हैं टेक्स्ट बुक पे। आप टेक्स्ट बुक प्लीज़ निकालिए और मैं आपको वहाँ से इम्पोर्टेंस देता हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है, based on my idea, based on the current affairs scenario which is going on in the country or in the state, and based on the type of paper that will be asked to you on all my telepathic shots. Chaliye, all right. As I told you that before internet studies was just a fashion, I started making a video, and you need to make sure that you are just focusing on all the videos that I have made already 3 to 4 years back. You're giving your good eyes onto it, एंड अच्छे से आप कर रहे हो रेडी अपने आप को। मेक श्योर करना, यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा आपको, इनमें से एक क्वेश्चन तो पक्का बोर्ड एग्जाम में आना है। ये 4 में से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में दिखेगा ही दिखेगा। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, प्रिपेयर अ क्वेश्चनेयर फॉर अ फील्ड विजिट टू फैक्ट्री का तो आपने पढ़ लिया होगा, एक NGO का भी बना के रखो। अगर NGO का आता है तो आप कौन से NGO को विजिट कर रहे हो, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का NGO है वो, या ओल्ड एज हाउस है वहाँ पर, या वुमेन ट्रैफिकिंग हो रही है उसका NGO है वो, या मेरे ख्याल से कोई बर्ड एनिमल रेस्क्यू का NGO है वो वाला NGO अगर होता है तो आपको उसके ऊपर भी क्वेश्चंस बना के रखना है। NGO के 10 क्वेश्चंस आपके पास रहने चाहिए। All right, IXYZ on behalf of MK Gandhi High School is here along with my standard 10th group to ask you the question related to your NGO. May I begin with? ऐसा आपको इंट्रोडक्शन देना है और आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछना है, when was this NGO established? सेकेंड क्वेश्चन आप पूछेंगे, how what are the plans or what is the purpose behind building up this NGO? या थर्ड क्वेश्चन आप ये पूछेंगे, what was the most difficult mission of your NGO? फोर्थ क्वेश्चन में आप पूछेंगे, how many members are there working for the social cause by through your NGO? All right, are the social media available for this NGO? ऐसा करके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। एंड देन आफ्टर, नाउ सी इट्स ऑल ऑफ अ सडन दैट केम इनटू माय माउथ दैट NGO टॉपिक कैन कम, सो आई कैन नॉट फ्रेम ऑल द 10 क्वेश्चंस line by line. I'll have to think and I'll have to give it a shot. But as in you got time, make sure that you're using ChatGPT, Gemini and any other platform, and you can just try to make up the questions. All right, then यहाँ पर जब मैं मूव करूँगा सेकेंड चैप्टर में, गिनती के 4 क्वेश्चंस हैं। चारों क्वेश्चंस को आपको क्या करने का है, एक बार ही दिमाग के अंदर लॉक लगा देना है। सबसे पहला तो यहाँ पर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ब्राज़ील एंड इंडिया प्रॉब्लम आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये क्वेश्चन एक बार आप देख लोगे। एंड उसके बाद में, हाउ आर ब्राज़ील एंड इंडिया डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ लोकेशन और लैटिट्यूडनल लॉन्जिट्यूडनल, ये वाला क्वेश्चन नहीं आता है, ये वाले क्वेश्चन आने के चांसेस बिल्कुल ही नहीं है, तो इसके ऊपर सर मत फोड़ते बैठना अपना। गिव रीजन्स पे आपको ध्यान देना है। गिव रीजन्स ऐसे क्वेश्चंस है इसमें, जस्ट ब्राज़ील इज़ नोन एज कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड, पॉपुलेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, इंडिया इज़ लुक्ड अपॉन एज यंग कंट्री। उसके ऊपर प्लीज़ वर्क कर लेना एक बार, बिकॉज या इंडिया इज़ लुक्ड अपॉन एज यंग कंट्री, वी आर गेटिंग हाईएस्ट रेमिटेंस, मतलब इंडिया के लोग इतने ज़्यादा फैल गए हैं हर कंट्री के अंदर कि जो इंडिया के लोगों को जो पैसा मिलता है बाहर कंट्री में, जितना वो इंडिया के अंदर आता है उतना और कोई कंट्री में नहीं जाता है। रेमिटेंसेस के नाम पे इंडिया इज़ नंबर 1। मोदी जी जब कतर गए थे तो उन्होंने बोला कतर के अंदर एक मिनी हिंदुस्तान है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कितना ज़्यादा इंडिया का पॉपुलेशन है जो लेबर फोर्स में जुड़ा हुआ है, एंड वी आर लेबर इंटेंसिव। नेक्स्ट, थर्ड चैप्टर में आपको ध्यान रखना है, ग्रेट एस्कार्पमेंट पे आपको ध्यान देना है। ग्रेट एस्कार्पमेंट कैन बी अ क्वेश्चन दैट यू कैन सी एज पर द फिजियोग्राफी कंसर्न, ग्रेट एस्कार्पमेंट में कम। एंड हमारे इंडिया से आपको द प्लेन्स पढ़ना है, हिमालयस पढ़ना है आपको, हिमालय के क्वेश्चन आ सकते हैं। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू इज, वेयर इज दैट आइलैंड वर्ड? यस, आइलैंड। अब इंडिया में देर आर टू कोस्टल साइड, वी हैव वेस्टर्न कोस्टल एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। मोस्ट ऑफ द नेचुरल पोर्ट्स आर टुवर्ड्स वेस्टर्न साइड and there are fewer natural ports on the eastern side. अगर आपको ये ब्रीफ पता है या गिव रीजन पता है ये वाला, तो इट्स वेरी गुड, बट मेक श्योर करना एक क्वेश्चन आपको पोर्ट पे मिलने ही वाला है, क्योंकि इंडिया में 12 पोर्ट है, 6 इधर है और 6 इधर है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, 6 ही है, आई एम श्योर। और इस तरफ जो पालघर है हमारा, एक नया डिस्ट्रिक्ट जो 36th डिस्ट्रिक्ट बना है महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पे एक पोर्ट आ रहा है। उस पोर्ट का नाम क्या था? आई कैन नॉट टेल यू राइट नाउ। इज माई गूगल देयर राइट नाउ?
गिव मी अ सेकेंड। तो वो जो पालघर में पोर्ट आ रहा है हमारा, वो पोर्ट क्या है, नवा नवा बन रहा है, अभी तक का बना नहीं है, उसको एक डेडलाइन मिल गया है कि उसको वो पीरियड तक का बन के तैयार हो जाना है। तो आपको ये बात ध्यान रखना कि एक पोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एंड वाधवान पोर्ट, यस, मोदी लेड द फाउंडेशन ऑफ वाधवान पोर्ट। ऑलराइट, वाधवान पोर्ट बनने वाला है, तो पोर्ट के ऊपर एक क्वेश्चन बराबर आपको देखने मिलेगा। इट्स अ करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन। ओके, फिर आपको ब्राज़ील में ध्यान रखना है अमेज़ॉन बेसिन के ऊपर। अमेज़ॉन बेसिन का अगर आपको जो नॉलेज है वो आपको टोटली अपने दिमाग के अंदर रखना है। एंड अमेज़ॉन बेसिन के ऊपर अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है इन टर्म्स ऑफ मैप, तो आपको याद रखना है अमेज़ॉन बेसिन कहाँ से चालू हो रहा है, कौन सी कंट्री से चालू हो रहा है, कौन से कंट्री से होते हुए जा रहा है, और ये किधर पे जाके गिर रहा है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। ऑलराइट, देन वी हैव यस, हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल इन नेचर। तो आपको पता रहना चाहिए पेरिनियल का मतलब क्या है। पेरिनियल मतलब क्या, सालों साल चलता रहे, उसमें रोक कभी नहीं लगती है। ऑलराइट, नेवर स्टॉप्स, इट्स अनस्टॉपेबल लाइक सिया। I hope you would have heard the song of Sia. Any which ways, we have this 4th chapter now coming onto the line, climate. Climate में let me tell you, climate chapter is important when you just see that there are questions that comes automatically from give geographical reason. Snowfall doesn't always occur in Brazil. Snowfall होने के chances बहुत कम है. Alright, then we have tropical cyclones occur rarely in Brazil. Again, then we have this Indian receive precipitation from the northeast monsoon winds too. तो ये precipitation वाला question आ सकता है, north east monsoon wind वाला। Am I clear? Tropical cyclone वाला question आ सकता है, because we have seen that many of the cyclones have come all this time in the last year, and cyclone वाला question आने के chances है। आपको पता है साइक्लोन का अलग अलग नाम होता है, अलग अलग कंट्री, अलग अलग ओशंस में उसके अलग अलग नाम होते हैं। एंड साइक्लोन आने के पहले उसके नाम डिसाइड हो जाता है। सबसे बड़ा कॉमेडी वाला बात तो यही है कि साइक्लोन आया नहीं, पर पहले से नाम रख दिए गए हैं। नेक्स्ट किधर हम लोग, अमेज़ॉन रिवर बेसिन पे। यस, अमेज़ॉन रिवर बेसिन जो हमारा 5th चैप्टर है, नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन से आपको ध्यान रखने का है। आप फॉरेस्ट टाइप बता रहे हो इंडिया और ब्राज़ील का कैसा है। देन वी हैव एनवायरमेंटल इश्यूज़ क्या है। यू हैव सीन दैट इंडिया में यमुना रिवर करके एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बाहर आ गया है। रिवर के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है आपको। ऑलराइट, जैसे कि आपको पता है दिल्ली में आम आदमी पार्टी थी बेचारी, पर वो चले गई, एंड नाउ देयर इज बीजेपी अगेन बैक। तो यहाँ पे सबसे पहला जो सीएम रेखा गुप्ता ने लिया है प्रण अपने अंदर कि उनको यमुना नदी को साफ करना है। एक क्वेश्चन रिवर पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज द सेम गवर्नमेंट एक्सिस्ट इन आवर स्टेट, यू कैन डेफिनेटली होप अ क्वेश्चन आउट ऑफ इट। एनवायरमेंटल इशूज़ के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। डू नॉट गिव इट अ ब्लाइंड आई, प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर डूइंग द बेस्ट ऑफ इट। वाइल्ड लाइफ इन इंडिया इज डिक्रीजिंग डे बाय डे, पक्का शॉर्ट क्वेश्चन। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लुक एट दिस क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जाम। Like India, there is need for conservation of forest in Brazil too. Now this question may come or not, I don't know, but yeah, just give it an eye. Now बस हो गया, 1 से लेके 5 तक का अगर आपका पढ़ के हो गया है ना, बस बुक बंद कर दीजिए आप। ऑलराइट, 1 से लेके 5 में आपको 40 में से 40 पूरे आ जाएंगे, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको। क्योंकि जब भी अगर आप पेपर उठा के देखेंगे ना ऐसा हाथ में, आपको दिखेगा कि 5 चैप्टर में से ही आधे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मतलब ऑप्शंस को अगर हटा दो तो आपको जो समझ लो कि एक गिव रीजन में 4 क्वेश्चन है, तो 2 आपको 1 से 5 में दिखाई देंगे, और 2 जो आपको 6, 7, 8, 9 में से दिखाई देंगे। 1 से 5 आपका अच्छा हो गया ना, बंद कर दो बुक। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 6th चैप्टर से लेकर 9th चैप्टर में आपको ध्यान रखना है मैप के क्वेश्चंस 3000 यहाँ से ही आ जाएंगे आपको। ऑलराइट, अब हमेशा देखो मैप्स के क्वेश्चन 6 to 9 चैप्टर में से ज़्यादा बनते हैं। ऑलराइट, ग्राफ के क्वेश्चन 6 to 9 चैप्टर से ही बनते हैं, और कहीं से नहीं। 1 से 5, 1 to 5 में तो कभी बनेगा ही नहीं, 6 to 9 में बनते हैं। तो आपको ग्राफ के क्वेश्चन को थप्पा मार के पक्का करने का है कि मुझे यहीं से आने वाला है और यहीं से मैं करने वाला हूँ। 6 + 4 10 मार्क के रास्ते आप नहीं लगाएंगे अगर आप 6 to 10 चैप्टर पढ़ेंगे तो। ऑलराइट, ग्राफ और मैप ऑब्जेक्टिव्स तो आपको पूरा करने का है। ऑब्जेक्टिव्स को आपको बिल्कुल भी आँख नहीं बंद करने का, ऑब्जेक्टिव्स पूरा करना है आपको। अगर ब्रीफ पढ़ने का मन कर रहा है या शॉर्ट नोट पढ़ने की क्रेविंग आ रही है आपको,
या फोमो फील हो रहा है, तो आप प्लीज़ एक बात ध्यान रखना कि आप ये वाले क्वेश्चंस पढ़े. व्हाट एडजेक्टिव्स आई एम यूजिंग. चलिए, आप यहाँ पर क्वेश्चंस कौन सा पढ़ेंगे. देखो, आपको ये बात ध्यान रखना है यहाँ पर कि पॉपुलेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ लो. ऑल राइट, इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, कत्थे ही ज़्यादा है एकदम. खास करके बिहार में तो बहुत ही ज़्यादा है. ऑल राइट, तो आप प्लीज़ एक बार पढ़ लेना ये. एनी बिहारी वॉचिंग दिस वीडियो, आई एम सो सॉरी इफ यू आर फीलिंग बैड फॉर इट, बट एनी विच वेज दिस इज द फैक्ट. वी हैव गॉट अर्बनाइजेशन इन इंडिया करके टॉपिक है यहाँ पर. ये वाला ग्राफ क्वेश्चन प्लीज़ एक बार देख लेना स्टूडेंट्स. अब ये मैप जो है ब्राज़ील का एज़ पर द पॉपुलेशन, आपको ध्यान रखने का है कि आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन दिखेगा साओ पाउलो, रियो डी जनीरो में और ब्राज़ीलिया साइड में. क्यों? क्योंकि ये हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है. ऑलराइट, और रियो डी जनीरो में तो आपको पता ही है Chris the Redeemer statue. Yes, I'm so sorry. Fifth wonder, Chris the Redeemer statue is just right over there. All right, yes, in Rio de Janeiro. Next we have is Sao Paulo, the highest populated state. And वैसे ही आपको densely populated state बताया मैंने, तो आपको moderate भी पता रहना चाहिए and at the same time least developed भी पता रहना चाहिए. All right, my beautiful students. And इसके बाद में we have got this questions here. Just have a revision. Give it an eye, that's it. Do not get submerged into it. 8th chapter में fishing in India, yes, 210%. PM Matsya एंड बहुत सारे ऐसे अभी मॉरिशियस में गए थे प्रधानमंत्री, तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बन के आ सकता है फिशिंग इन इंडिया में से. ब्रिक्स में वी आर गोइंग डाउन in as country wise, the record is going down. Maybe a question can come, but because यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन ब्रिक्स रिलेटेड नहीं है तो यहाँ से आने के सवाल नहीं. बट एनी विच वेज ब्रिक्स आता है तो आपको फुल फॉर्म पता रहना चाहिए. ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड एस से क्या है? सिंगापुर है क्या साउथ अफ्रीका है? आप बताइए मुझे, आपके लिए रखा है मैंने. क्या है बताइए फटाफट. ब्रिक्स का एस क्या है? फिर उसी के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये फाइनल चैप्टर पे आते हैं. तो फाइनल चैप्टर पे आपको मालूम पड़ेगा कि वी हैव गॉट दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चंस हियर टू. बट सिर्फ देखना, इसको रिवाइज करना बस. 1 to 5 आपका बेस्ट तरीके से होना चाहिए. एम आई क्लियर चैम्पियंस? 1 to 5 अगर आपका बेस्ट होता है तो ही हम लोग डांस कर सकते घर पे आके. फिर आराम से सो जाना, 2-3 दिन आराम से सोए रहना. गैंजेटिक डॉल्फिन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. येस, आ सकता है. क्यों बोलो? क्योंकि अभी अभी डॉल्फिन सेंसस भी हुआ है हमारे कंट्री में. 3243 डॉल्फिन्स, मे बी आई एम रॉन्ग अगेन विद द नंबर्स. 3243 और 6343, दिस इज द डिफरेंस. $710 डॉल्फिन्स इन चिल्का लेक. 3500 से 4500 के बीच में एस्टिमेशन है. ऑल राइट, सो दिस इज द फाइनल नंबर. देयर आर एवरेज ऑफ 3275, 2414, 584 इन ब्रह्मपुत्र. 3275 प्लस 2414 प्लस 584, 6273 डॉल्फिन्स है हमारे पास. तो यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बन सकता है तो ये एक ही क्वेश्चन बन सकता है. बट आई डोंट फील सो ये बनेगा, क्योंकि पेपर आपका बन के एक महीने पहले तैयार हो जाता है, तो ये चीज़ आने का सवाल नहीं उठता है. ऑलराइट, अंटिल वी मीट फॉर द वेरी नेक्स्ट टाइम, आई विश यू ऑल द बेस्ट. आपने देखा कि मैं अगर कोई मेरे को डाउट्स रहता है तो मैं फटाक से उसको जगह पे सॉल्व कर देता हूँ. तो आप भी अपने अंदर ये हैबिट बिल्ड करिए. सो इन केस अगर ये चीज़ आपको कहाँ बड़ी जगह पे पूछी जाती है तो यू शुड नॉट हैव दैट क्वेश्चन मार्क और फीलिंग ऑफ डाउटफुलनेस. अंटिल वी मीट फॉर द वेरी नेक्स्ट टाइम, कीप रॉकिंग, ऑल द बेस्ट. Pray for me. Your prayers are important more than
anything else in this world at this point of time. I just need prayers. So please pray for me. Okay?